So Ranveer Halabadia has always been a very sweet spot when it comes to spirituality in the Indian YouTube community. And today in this video, I'm actually going to talk about the points where Ranveer is criticized when it comes to spirituality and what is the truth which you need to know. But before actually moving on to the video, there are three types of people who would be watching this video. Number one, those who know something about spirituality. Number two, those who don't know shit about spirituality. And number three, those who don't know shit about spirituality, those who haven't meditated even on a single day, but still they think that they know a lot about it. सी पहले और दूसरे बंदों का तो मुझे नहीं पता, इट्स अपन देम इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो और नॉट, बट फॉर द थर्ड टाइप ऑफ पीपल दिस वीडियो इज प्राइमरीली फॉर यू. That's when I really discovered the power of mantra chanting, mantra jap, repeating a mantra constantly in meditation. Just one short mantra. It could be something from your own religion. It could be something you've grown up with. Just that one mantra. Om, Om Namo Dattaya, Om Namah Shivaya, Om Vasudeva Namah. These short mantras. Just repeat them in your meditation and witness the effects it has on your process of meditation. For the first time, I did not know which is me and which is not me. What was me was just spread all over the place. I thought this madness lasted for 5–10 minutes, but when I came back to my normal ways of being, 4.5 hours had passed. I'm sitting right there, fully conscious, eyes open. I sat there around 3 o'clock in the afternoon, it's 7:30 in the evening, sun has set, and I thought it's only 10 minutes, but 4.5 hours had passed. Everything became luminous. It was all over the place. The benediction, the blessedness. I could see the trees for the first time. They're green, they're life, they're very safe running. But at that point of time na, I had absolute immense control over myself. इमेंस मतलब पूरा, मतलब जैसे नहीं होता तुम किसी रूम में घुसते हो और बल्ब है, ये फैन है और तुम्हारे पास उस फैन का स्विच होता है, उस बल्ब का स्विच होता है, तो यू क्लिक दैट स्विच, द बल्ब विल ग्लो, यू क्लिक दैट अगेन एंड द बल्ब विल गो ऑफ. वो तुम्हारे ऊपर होता है, राइट, कि तुम्हारे ऊपर कंट्रोल होता है. आई हैड एब्सोल्युटली दैट कंट्रोल ओवर दिस. तो रणवीर समटाइम्स ये कहता है कि कभी वो मेडिटेशन कर रहा था बैठ के तो उसके आंख के सामने बिल्कुल ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट आ गई. कभी वो ऐसा कहता है कि वो जब मेडिटेशन कर रहा था तो उसको दुनिया का परसेप्शन ही चेंज हो गया, उसको जो कलर्स हैं वो ज़्यादा सैचुरेटेड से दिख रहे थे. व्हाट इज द ट्रुथ? और अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है ना कि रणवीर के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो या तो पागल है, वो या तो साइको है, या तो वो फेंकता है, देन यू आर डिनाइंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ मिलियंस ऑफ अदर पीपल जिनको मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हुए हैं, इंक्लूडिंग मी. ये वीडियो जब स्टार्ट हो रही थी तो मैंने तुम्हें सदगुरु, ओशो, मेरे और रणवीर के ऐसे कितने सारे एक्सपीरियंसेस की मैंने तुम्हें क्लिप दिखाई, एंड दैट इज फॉर अ रीजन. अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना. मान लो एक बंदा है जिसके 100 बंदों से फाइट हो रखी है, तो क्या वो एक बंदा रॉन्ग है कि वो 100 के 100 बंदे रॉन्ग है? इट्स जस्ट लाइक दैट. इफ यू हैवंट हैड दीज एक्सपीरियंसेस, दैट डज नॉट मीन कि सामने वाला बंदा जिनको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो फेक एक्सपीरियंसेस हैं. इफ यू हैवंट हैड दीज एक्सपीरियंसेस, देन दैट डज नॉट मीन कि अगर जो सामने वाले को एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो फेक रहा है या फिर वो पागल है या फिर ये सब कुछ एक प्लेसिबो effect है. Obviously exceptional cases are there, but you just cannot discard a statement, you just cannot discard any experience just because of the fact कि तुमने उस experience को कभी embrace किया नहीं है, फिर तुम्हें वो experience कभी हुआ नहीं है. So if you did not have any such kind of experience, that means that you did not have it. That does not mean that we, Ranveer, or for that matter any of the person जिसको experiences हुए हैं वो wrong है. So fake experiences, this argument is at this point of time discarded. रणवीर ने स्पिरिचुअलिटी को मोनेटाइज कर दिया है. कैसे? और अगर किया भी है तो क्या 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 गलत है उसमें? अगर वो बंदा अपने पॉडकास्ट के थ्रू, अपने वीडियोस के थ्रू 1 लाख बंदों को, 2 लाख बंदों को मेडिटेशन करने के लिए मोटिवेट कर रहा है और अगर वो उससे पैसे अर्न कर रहा है, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट?
इफ यू वॉन्ट टू अर्न मनी वाई कैन नॉट दैट गाय अर्न मनी? तुम अगर स्कूल में जाके अपने टीचर से बोलो कि भैया आप मेरे से पैसे मत लो, मैं स्कूल की फी नहीं भरूंगा, आप मेरे को एजुकेट करने के पैसे ले रहे हो। हैव यू एवर टोल्ड योर टीचर तुम अपने स्कूल की फी भरते हो तो अपने कॉलेज की फी भरते हो, तो व्हाट इज रॉन्ग विथ मोनेटाइजेशन? He is not doing something illegal, he is not forcing you, वो बस अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा है, वो बस वीडियोस डाल रहा है, उससे उसके पैसे बन रहे, इट इज नॉट रॉन्ग। सो हाउ इज ही मोनेटाइजिंग स्पिरिचुअलिटी? और अगर मोनेटाइज कर भी रहा है तो दिक्कत क्या है, कि क्या गलत है? वो बंदा पैसे क्यों ना कमाए? वाई शुड नॉट ही अर्न मनी? जब तुम कमाते हो, तुम्हें अमीर होना है, तो वाई शुड नॉट ही? एंड फॉर दैट मैटर एनी पर्सन, किसी का स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं है, बट इफ अ पर्सन इज एबल टू मेक मनी थ्रू इट, इफ ही इज इंप्रूविंग लाइफ, ही इज मेकिंग मनी, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो पैसे से ये जो लोगों की एवर्जन है ना, स्पेशली इन इंडिया के, हम कमाई तो बहुत अच्छा, सामने वाला कमाई तो बेकार है, इट्स अगेन कंप्लीटली योर इग्नोरेंस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पैसा कमाना कोई क्राइम नहीं है। इट इज कंप्लीटली फाइन, इट इज कंप्लीटली फाइन एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डूइंग समथिंग व्हिच इज इलीगल इन इंडिया। रिलेशंस विद सक्सेस, मतलब जो रणवीर के टाइटल्स थे वीडियोस के, कि हाउ स्पिरिचुअलिटी मेड हिम अ मिलियनियर, स्पिरिचुअलिटी ने कैसे उसको करोड़पति बना दिया, व्हाट इज द ट्रुथ? देखो, इस बात को बहुत सिंपल से समझो। ये बात भले ही तुम्हें थोड़ी सी इर्रेशनल लगे, बट एज अ यूट्यूबर जब तुम इंटरनेट पर होते हो, या फिर एज अ यूट्यूबर जब तुम वीडियोस अपलोड करते हो ना, तो क्लिकबेट करना, वीडियोस को थोड़ा एग्जैगरेट करके बनाना है, स्पेशली जो थंबनेल्स होते हैं या जो टाइटल्स होते हैं उनको एग्जैगरेट करके बनाना इज अ पार्ट ऑफ इट। वो कंपल्शन है, तुम उसके बिना अपने चैनल को ग्रो कर ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना, रणवीर अलाहाबादी जब बात ये कहता है कि स्पिरिचुअलिटी ने उसको मिलियनियर बना दिया, तो दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ने उसको मिलियनियर बना दिया। लोगों के मन में ये जो टाइटल को देख के गलत फहमियां बसती है ना, देखो, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि यू ऑलवेज एंड ऑलवेज नीड टू ब्लेंड स्किल्स विद स्पिरिचुअलिटी। तुम अगर सिर्फ स्पिरिचुअल हो तो 2021 में इट वुड बी वेरी वेरी टफ फॉर यू टू हैंडल दीज थिंग्स, राइट? और अगर तुम में सिर्फ स्किल्स ही है और तुम स्पिरिचुअल नहीं है, तो मे बी यू आर मिसिंग आउट अ हायर पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पिरिचुअलिटी हैज बीन वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर जो रणवीर के सक्सेस में रहा है, बट दैट डज नॉट मीन कि स्पिरिचुअलिटी अलोन हैज बीन अ कंट्रीब्यूटर। तो स्पिरिचुअलिटी इज अ पार्ट ऑफ हिज सक्सेस, इट इज नॉट द अकेला reason of his success. So understand this. When he says that spirituality made him a millionaire, he does not mean that spirituality alone made him a millionaire. It means that spirituality gave him that enthusiasm, that curiosity, that fire, that strength, and what not to become the person who he is right now. And I'm not taking his side. I'm just trying to tell you कि क्या truth है, because even I can relate to his experiences. And for that matter, जो भी बंदा actively spiritual है, तो मुझसे पूछ लो, उसके experiences has always been very very similar. Forced positivity, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलती है रणवीर को इस चीज के ऊपर। फोर्स पॉजिटिविटी क्या होता है? फोर्स पॉजिटिविटी तुम बताओ। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि हो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इट्स फोर्स्ड पॉजिटिविटी? नो, इट्स नॉट फोर्स्ड पॉजिटिविटी, इट इज जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। बहुत ऐसे बंदे हैं जो इस टाइप की वे ऑफ लाइफ में जीते हैं, जो अपना माइंडसेट इस तरीके से करते हैं, दे बिलीव इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर उनके लिए वो चीज काम करती है, इट कंप्लीटली फाइन। यू आर नो वन टू टेल कि वो चीज फोर्स पॉजिटिविटी है, यू आर नो वन टू टेल कि वो स्कैम है। इफ यू कैन नॉट attend, if you cannot cater to that thought process, that does not mean कि वो चीज रॉन्ग है। Even I cannot be positive all the time, वो मेरे mindset में नहीं है, that is not my lifestyle, but that again that does not mean कि वो चीज गलत है। If you like कि तुम्हें थोड़ा raw रहना पसंद है, it's completely fine, but if you do not like forced positivity, that does not make that style of living a fake style.
तो ये जो कहते हैं फोर्स पॉजिटिविटी है, सब कुछ अच्छा है, देखो ये कैसे बेवकूफ बनाता है, ये बच्चा है, बच्चों को ये करता है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, इसकी तो ऑडियंस किड्स है, ये रियल नहीं है भाई। ही हैज बिल्ड स्टार्टअप, ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन। और तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर वो इतना ही फेक होता, अगर वो इतना बेकार प्रीच कर रहा होता, तो ही वुड नॉट हैव बीन दिस मच सक्सेसफुल, एंड आई कैन बेट एनीथिंग ऑन दैट। अगर तुम कमेंट सेक्शन पे बैठ के अगर तुम उसको ऐसे कहते हो कि नहीं तू फेक है, तुमने कुछ किया नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि यू आर रॉन्ग ईदर, बट इट जस्ट दैट कि उसकी भी लाइफ का स्टाइल जो पॉजिटिविटी वाला है वो रॉन्ग नहीं है। सबके अपने अपने वेज हैं, अगर वो उसके लिए काम करती है इट्स कम्प्लीटली फाइन, अगर वो तुम्हारे लिए काम नहीं करती तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, सबके अपने वेज होते हैं। तो स्टॉप सेइंग दैट ही इज फेक, फोर्स पॉजिटिविटी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मैंने फोर्स पॉजिटिविटी के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखे, तो गो एंड वॉच, तो तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फ्लर्टिंग की दुनिया की नंबर 1 ट्रिक नहीं दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइनली ये आपके भाई की प्रॉमिस है। एक भाई का फर्ज होता है कि जो उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसके लाइफ के लर्निंग्स हैं, वो दुनिया के साथ शेयर करे। और मैं हूँ आपका सच्चा भाई रणवीर अलावादिया। आप तो अगर रणवीर इतना ही स्पिरिचुअल है तो वो फ्लर्ट कैसे करें, लड़की कैसे पटाएं, ये सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता ही क्यों है, इसको बड़े ध्यान से समझो। स्पिरिचुअलिटी का ना हमारे मन में जो प्री कंसीव्ड नोशन है, दैट इज इक्वल टू ब्रह्मचारी या फिर मॉन्क। स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन कि तुम मॉन्क बन जाओगे। यू कैन स्टिल बी इन अ रिलेशनशिप, यू कैन हैव सेक्स एंड यू कैन स्टिल बी स्पिरिचुअल इन नेचर। स्पिरिचुअलिटी का मतलब मॉन्कहुड नहीं होता है। इट मीन्स दैट यू आर इम्प्रूविंग इन योर लाइफ थ्रू मेडिटेशन एंड थ्रू सच अदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो रणवीर ऐसी वीडियोस क्यों बनाता है? बिकॉज इट इज नॉट रॉन्ग। थोड़ा जो टाइटल है लड़की कैसे पटाए, इट माइट साउंड क्लीशे भी, बिकॉज वो हिंदी में लिखा है। तुम अगर इंग्लिश में बोलो रिलेशनशिप, इट साउंड्स गुड, बट अगर तुम हिंदी में संबंध बोलो, इट डज नॉट साउंड दैट स्टैंडर्ड, बिकॉज हमारा माइंडसेट वैसा है। बट स्पिरिचुअलिटी का इससे कोई रिश्ता नहीं है। फ्लर्ट करना, ये करना, वो करना, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, इट्स अ फन पार्ट एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हार्मिंग अ पर्सन। इट्स कंसिडर्ड फन, स्पेशली इन 2021। अगर तुम्हारे उस एक्टिविटी से सामने वाले को हार्म हो रहा है, देन इट इज रॉन्ग, बट जनरली स्पीकिंग इट्स कूल, वो इट्स ओके। तो स्पिरिचुअलिटी के इससे कोई भी रिश्ता नहीं है कि अगर रणवीर स्पिरिचुअल है तो उसने इस टाइप की वीडियोस क्यों बनाई, क्योंकि कुछ रॉन्ग नहीं है इसमें। It's okay. You can still meditate, you can still improve, but you can still be in a relationship. It's completely fine. तो तुम्हारे मन में एक प्रीकंसीव्ड नोशन है स्पिरिचुअलिटी को लेके जो कि रॉन्ग है, और तुम अपने मन में बैठाए हुए नोशन से अगर सामने वाले को रॉन्ग बोल रहे हो, तो आई एम सॉरी, देन यू आर इग्नोरेंट. दैट पर्सन इज नॉट, यू आर इग्नोरेंट. सो दैट इज इट. यू सॉ कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, खासकर इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में रिसेंट पास्ट में स्पिरिचुअलिटी को लेकर जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, मोस्ट ऑफ दोज आर्ग्यूमेंट जस्ट कम फ्रॉम इग्नोरेंस. वो बंदे जिन्होंने शायद जिंदगी में आज तक मेडिटेशन किया नहीं होगा, या फिर किया भी होगा तो 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं किया होगा, वो जब इस टाइप के आर्ग्यूमेंट देते हैं तो वो तुम्हारे इग्नोरेंस है. हर बंदे के अपने ओपिनियंस है, हर बंदे का अपना स्टाइल है. देखो, आई एम नॉट सेइंग कि रणवीर इज 100% राइट, बट ना तुम 100% राइट हो, ना मैं 100% राइट हूँ. हम सबके फ्लॉज है, हम सबके फ्लॉज है. तो इट इज जस्ट दैट उसके लिए वो चीज़ काम करती है, हमारे लिए ये हमारी चीज़ का काम करती है, तुम्हारे लिए तो तुम्हारी चीज़ काम करती है. तुम अपने ओपिनियन के साथ खुश रहो, वो अपने के लिए खुश रहेगा, मैं अपने के साथ खुश रहूंगा. लेकिन अगर तुम अपनी इग्नोरेंस के कारण उस बंदे को फेक कह रहे हो, स्कैम कह रहे हो, तो आई एम सॉरी, दैट इज योर इग्नोरेंस. वो तुम्हारा फ्लॉ है, वो उसका फ्लॉ नहीं है, वो मेरा फ्लॉ नहीं है. तो इफ इट्स योर बाउंड्री थॉट पैटर्न, इट्स योर मिस्टेक. क्योंकि उस बंदे ने जितना भी कुछ करा है, स्टार्टअप्स बिल्ड किए, जो भी किया है, इट इज बिकॉज वो चीज उसके लिए काम करी है. सो अंडरस्टैंड दिस. बेकार में कुछ सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स जो यूट्यूब पर आकर ज्ञान बांटते हैं, उनके चक्कर में अपना थॉट पैटर्न, अपने एक्सपीरियंसेस को रियून मत करो. गो एंड एक्सपीरियंस व्हाट इट इज.
फिर तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि रणवीर जो प्रीच कर रहा है उससे उसको बेनिफिट हुआ है, उसके वीडियोस के थ्रू कितने लोग मोटिवेट हुए हैं मेडिटेशन करने को, और लाखों बंदों को बेनिफिट होता है। कभी उसका कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ लेना। तो वो जो लाखों लोग बैठ के डेली बेसिस पर उसको थैंक यू बोलते हैं कि आपने मेरे को अच्छा कर दिया, आपने मेरे को इम्प्रूव कर दिया, वो बेवकूफ नहीं है। और अगर तुम्हें वो सारे लोग बेवकूफ लगते हैं, अगर तुम्हें वहां पर बैठे हुए लाखों लोग बेवकूफ लगते हैं, तो कौन बेवकूफ है ये बोलने की नीड मुझे नहीं है।